a scientific research asset when purchased is allowed as a deduction under section 35. How much deduction? It varies from 100 to 175%. Okay. Hence, when you bring that asset जिसके ऊपर तुमने 100% डिडक्शन ले लिया है into business, when brought into business as a business asset, के हो गया, अब ये साइंटिफिक पर्पस के लिए काम नहीं आने वाला है, अब मैं इसको अंदर as my business asset I am putting it in. When brought as a business asset, the value of that asset will be taken as nil. जो तुम लेते ना cost will be taken as nil. Cost of asset will be nil. Why? Because you have already availed a deduction. What if I do not bring it into business? Okay. So one is I bring it into business. One is I do not bring it into business. Not used as business asset. ठीक है, तो क्या करोगे? Okay. अगर तुमने बिजनेस एसेट के लिए नहीं यूज करना है तो बेच दो. करेक्ट. तुम्हारे पास एक एसेट, साइंटिफिक रिसर्च एसेट कुछ पड़ा है जिस पे तुमने इन्वेंशन किया है. ओके. लेट्स से फॉर माय एग्जांपल सेक आई एम सेइंग इट इज अ टेलीस्कोप. आई यूज्ड इट फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड दिस टेलीस्कोप now I do not want to bring it into my business as any other normal asset. I want to sell it off. So I want to sell it off. Okay. So it is not used for business and you're going to sell off the asset. In that case they are saying देखो बॉस, हमने तुमको डिडक्शन क्यों दिया था? Only because you are using for scientific research. Now if you're not going to use it for scientific research and you're just going to sell it, okay, the deduction availed will now be reversed. The deduction is reversed. मतलब तुम अपने बिजनेस एसेट को तुम बिजनेस एसेट में यूज नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का एसेट उसको बेच दोगे. तो अगर तुमने जो भी डिडक्शन अवेल किया है दैट डिडक्शन विल बी रिवर्स. मतलब यहाँ नेगेटिव तुमने 100% लिया था, दैट वैल्यू विल बी एडेड टू योर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. Again, what they are saying, we are giving you deduction so that you use it for business profession. Now you put it in the business and after few years you are saying I don't want the asset, so you are going to sell it off. If you are going to sell it off, they are going to reverse your deduction that they have given to you. Okay. So now based on this logic we are going to do one sum today. Okay. जो तुम लोग ने ट्राई किया होगा और नहीं मिला, तो ये देखते हैं. शॉर्ट पॉइंट आई हैव गिवन ओवर हियर. We are taking into account a situation where I am doing a sale of an asset used for scientific research. Okay, the important word here is sale. One, it can be used as a business asset. Okay, if it is used as a business asset, the value will be taken as nil. तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन का तो सवाल नहीं है. डेप्रीसिएशन 15% ऑफ जीरो is 0, 10% ऑफ जीरो is 0, so डेप्रीसिएशन भी नहीं आएगा. ठीक है. इफ इट इज यूज्ड एज अ बिजनेस एसेट. इफ इट इज नॉट यूज्ड एज अ बिजनेस एसेट एंड इट इज सोल्ड डायरेक्टली, द अमाउंट अवेल्ड एज डिडक्शन विल बी एडेड एज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. मतलब तुमने अगर लेट्स से द वैल्यू ऑफ द एसेट इज 100 lakhs and you had taken a full 100% deduction, okay, when you purchased it for scientific research, now it will be reversed. That means that value of the asset will be added as income from business profession. Okay, it will be added. Now another thing, अब तुम उसको बेच रहे हो. So let's take an example. मेरे पास the value of my asset, okay, example, let's take my selling price of the asset is 65. Okay, मैंने जब परचेज किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत साल पहले 30 lakhs था. ओके, तो अभी तुमने कितने में बेचा? 65. बट ये एसेट, ओके, अगर तुम उसको बिजनेस में आज के दिन पे लेके आओगे, इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस एसेट इनटू बिजनेस, यू विल से द वैल्यू ऑफ दिस एसेट विल बी निल. द वैल्यू ऑफ दिस एसेट विल बी निल. व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अवेल्ड अ डिडक्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइंटिफिक रिसर्च एसेट. ओके,
Okay. Now, this asset, okay, if it is not used for business profession और तुम डायरेक्टली बेचने वाले हो, तो हम क्या करेंगे? ब्लॉक लेंगे. ब्लॉक में क्या, लेट्स टेक द एग्जांपल, ओके, विच इन फैक्ट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, एक बार हमने देख लिया है. हाँ, सो ये वाला सिचुएशन देखो. ओके, हम यहाँ एक एसेट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं. अगर सेल करेंगे नेगेटिव आया तो नो डेप्रिसिएशन, दिस अमाउंट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. अगर पॉजिटिव आया तो डेप्रिसिएशन मार दो वो ब्लॉक पे. हम ब्लॉक की बात करें, ये एसेट जो तुम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर लेके आओगे तो वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी नील, है ना. यहाँ तुम नील डालोगे, नील आएगा. इट इज अ परचेज और एन इनपुट इनटू द ब्लॉक. देयर विल बी अदर एसेट्स इन द ब्लॉक. इट्स नॉट दैट यू विल हैव ओनली वन एसेट. अलग अलग एसेट्स होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होगा. ये तो तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च एसेट है, अब नॉर्मल एसेट हो गया तो वो उसका वैल्यू 0 आएगा. बट जब बेचोगे, हो सकता है वो बेचा तुमने और तुमको जो वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल WDV ऑफ द एसेट है उससे कहीं ज़्यादा मिला, तो ये तुम्हारा नेगेटिव अमाउंट आएगा. इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. अगर पॉजिटिव अमाउंट आया तो उस पर तुम डेप्रिसिएशन हिट कर दो. ओके, सिंपल. विल सी एन एग्जाम्पल. सो बेसिकली if the closing amount is negative, no depreciation. If it is positive, there will be depreciation. So this is when you are bringing that asset into here. We are talking here used as a business asset, and when you sell it, you will take into account whatever is there. और अगर ये amount negative है, if the amount is negative, देखा है हमने ऊपर अभी कल. Okay, if the amount is negative, this whole thing will be a short term capital gains. But if it is positive तो क्या, अरे पॉजिटिव है तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन हिट करो, किसने रोका है? ओके, नाउ Ma'am, हाँ, in that used as a business asset, how will it ever be negative? Because your cost of asset is always. we'll see one sum करेंगे, उसमें देखेंगे how it will be negative. I'm just giving you two options. पॉजिटिव हो सकता है या ब्लॉक ऑफ एसेट तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है. सिंपल. ओके, let's say when it is not used as a business asset. If it is not used as a business asset, what you'll do, scientific research है, मेरे पास टेलीस्कोप है या एनी अदर लेबोरेटरी का कोई आइटम है और उसको मैंने बेच दिया. ओके, when I sell it, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज दैट जो मेरे पास जो डिडक्शन अवेलेबल था अब वो रिवर्स हो जाएगा. तो इट विल बी एडेड टू will be added as income from business profession first. And when that asset is sold, it is not a business asset, it is any other asset. So how will you treat any other asset? It will be a capital asset, so there will be capital gains. Okay, so only when you do capital gains you will understand. If it is a business asset, we will treat it like how we checked over here. Okay, यहाँ बिजनेस में डाल दोगे और फिर देखेंगे क्या करना है, डेप्रिसिएशन हिट करोगे एक्सेट्रा. बट बिजनेस एसेट नहीं है तो तुम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों मारोगे? नहीं मार सकते हो, बिजनेस एसेट है तो. इफ इट इज नॉट अ बिजनेस एसेट, ऑन दैट साइंटिफिक रिसर्च यू कांट इवन हिट अ डेप्रिसिएशन, नॉट कम इनटू द ब्लॉक. ओके, हाउएवर इट इज सोल्ड. व्हेन एनी एसेट इज सोल्ड यू विल, अगर घर बेच रहे हो तो क्या करोगे, वो घर के ऊपर बिजनेस प्रोफेशन का तो इनकम नहीं आएगा. शेयर्स बेच रहे हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वो जो इनकम हिट होगा विल बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन्स डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. सो व्हेन वी डू कैपिटल गेन्स यू ऑल विल अंडरस्टैंड. बट जिनको नहीं पता, कैपिटल गेन्स इज द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर. हमने लाइफ में हमेशा कैपिटल गेन्स किया है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर गेन और प्रॉफिट. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. Okay, but I क्या है, index cost of acquisition. So what we are going to take into account, inflation, the amount that I must have paid. Okay, 10 years back, let's say 10 years back I paid 10 lakhs to purchase a house. That 10 lakhs की value में inflation reflect होगा, and that 10 lakhs today if I want to purchase the house I will have to pay at least 15 lakhs. The value has changed of that money itself. So we will take into account index cost of acquisition. कैसे करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओनली, बट यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन. इंडेक्स ईयर ऑफ सेल अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज. ओके, whenever we do capital gains we are going to go in depth of it. Okay, this is to combat inflation. इंडेक्स ईयर ऑफ सेल अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज. एक तुम्हारे पास टेबल होगा, उसमें दिया रहेगा 2011 में क्या है इंडेक्स ईयर ऑफ सेल, तो एक अमाउंट दिया रहेगा.
Okay, when you purchased it, let's say I purchased it in 2002, what is the index value over there? Simple है, कुछ नहीं करना है, selling price minus cost price, but you will just take this index year of sale upon index year of purchase whenever we are, because we are going to combat inflation with this, and जो भी आया तुम्हारा capital gain, and it is called long term capital gains. Going to study, let's take one sum of this. Okay, जिसके पास बांगर है, बांगर का एक सम हमने देखा है 52, मोहित. ओके, एक बार ये मोहित वाला सम देखते हैं. इट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस इज इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट वी डिड राइट नाउ. ओके, मोहित परचेज्ड अ साइंटिफिक रिसर्च एसेट in 2008 and 9 in the financial year 8-9 for 30 lakhs. Again, it is a scientific research asset. It should immediately click that 100% का deduction तो minimum उसने लिया. Now, in the previous year 1920, the asset ceased to be used for scientific research. मतलब 1419 जैसे हिट हुआ, we stopped using that asset. Mohit stopped using the asset for scientific research. So if he stopped using the asset, there are two options. If it is not used for scientific research, then either I get into the business. वो asset को आप business के लिए use करेंगे जैसे normally दूसरे assets करते हैं, और I sell off the asset without using it for business profession. मतलब कोई भी नॉर्मल एसेट के जैसे उसको बेच दो, गाड़ी बेचते हो, घर बेचते हो, शेयर्स बेचते हो, वैसे ये वाला पर्टिकुलर एसेट को बेच दो. दो सिनेरियो हो सकते हैं. इसके अलावा उन लोग ने क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन. बिजनेस तो कर रहे हो, तो बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, बट अभी देखो दे हैव नॉट हिट अ डेप्रीसिएशन. ओके, WDV ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स. बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं. सो दे आर सेइंग WDV ऑफ द ब्लॉक as on 1419, that is the opening value of the block is 20 lakhs. इसके ऊपर माइंड यू डेप्रीसिएशन नहीं लिया है, डेप्रीसिएशन एंड ऑफ द ईयर लेते, 31st March 20, करेक्ट. सो दे हैव नॉट हिट अ डेप्रीसिएशन. यू विल हैव टू हिट अ डेप्रीसिएशन ऑन दिस 20 lakhs. सॉरी, प्रॉफिट, हाँ, यू विल हैव टू हिट अ डेप्रीसिएशन ऑन दिस 20 lakhs at the rate of 15%. ये तुमको करना पड़ेगा. ओके, now they are saying selling price of the scientific research asset is 65 lakhs. Okay, selling price is how much? They sold the asset for 65 lakhs. Now आगे भी दिया है तुमको, the cost of inflation index is 2008-9 is 137, for 1920 is 289. ये क्या है? ये हमको हेल्प करेगा to find out the capital gains. Capital gains कब करेंगे? When it is not used for business. Then you will treat it as a normal asset. Normal asset को बेचते हो जो business से related नहीं है, it will be treated under the head income from capital gains. उसके लिए you need these inflation index. Okay? What if it is used for business profession? If it is used for business profession, यहाँ देखो, if it is used for business profession, so we saw first वाला, if it is not used for business profession, then what will happen? The cost of acquisition for you it will be nil, क्योंकि तुमने already scientific research का 35 के अंदर deduction ले लिया है. And then you will take the WDV of the asset. Normally जो तुम asset उसका डाल दोगे, you are using it for your business now, so it will be treated as any other asset जिसका value nil है. Okay, तो देखते हैं how will we treat this sum. We are first starting with not used for business profession. Okay. So I am first doing asset is used for business profession. Okay, I'm doing the B1 first because we are doing this chapter. Okay, asset is used for business profession. So it should immediately strike you. Since scientific research asset, cost of acquisition is nil. Cost of acquisition is nil. Therefore depreciation on a जिसका वैल्यू nil है उसमें क्या ही डेप्री लोगे, डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो जीरो. तो नॉर्मली हम जो सम करेंगे वैसे करेंगे. क्या करते हैं हम नॉर्मल सम में? WDV ब्लॉक ऑफ एसेट्स लेंगे, ओपनिंग ब्लॉक
कितना है ओपनिंग ब्लॉक, कितना है तुम्हारा WDV एज ऑन दिस, नॉर्मल एसेट्स है तुम्हारे 20 लाख. At purchases there has been no purchase, but we have one asset has been acquired during their purchases or acquisition से, है ना. तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है हमने बोला अभी, तो वो परचेज का वैल्यू या एक्विजिशन का वैल्यू नील है. हैज देयर बीन अ सेल ऑफ द एसेट, एनी सेल, यहाँ लिखा है ना, कोई एसेट अंदर से बिक गया, सेल होगा. इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक and from that block you sold the asset. If I sell the asset, what is the closing value जिसके ऊपर तुम अपना depreciation hit करोगे? Can I say negative 45 lakhs? If it is negative 45 lakhs, it should immediately strike you. That means this is actually a gain, short term capital gain. 20 लाख का हमारा वैल्यू था एसेट का, हमने तो 65 lakhs में बेच दिया. There may be other assets in the block, I'm not denying that, but one asset was so good that I sold it for 65 lakhs. So what is this? जिसका cost of acquisition 0 था तुम्हारे लिए, तो ये कितना हो गया? Short term capital gains. Have they told you find the short term capital gains? No, they are telling you find the total income. इसके अलावा okay, you are also going to incur some other income. Okay. Now another thing, this is short term capital gains. Can I hit a depreciation on a negative amount? No, depreciation, I can't hit a depreciation on a negative amount. तो जो तुम्हारा इनकम है ना, यहाँ देखो ऊपर दिया है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, दिख रहा है 10 लाख, बट दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स आई हैव टू हिट द डेप्रिसिएशन. बट यहाँ तो तुम बोल रहे हो नो डेप्रिसिएशन, करेक्ट. सो इनकम, दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, हाँ, दिस इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन विच इज राइट नाउ 10 lakhs. इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बिफोर डेप्री, ये अमाउंट पे तो तुम्हारे ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, दैट इज अंडरस्टूड. ओके, 10 लाख लेस डेप्री, डेप्री नहीं मिलेगा, 0. तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कितना हो गया? टैक्सेबल 10 lakhs, करेक्ट. एनी डिफिकल्टी ओवर हियर? So can I say my total income will be income from business profession and income from capital gains? तो मुझे सिर्फ हमारा टोटल इनकम ढूंढना है ना. 10 लाख इधर प्लस 45 lakhs इधर, 55 lakhs हो गया. एनी प्रॉब्लम? ओके, देखो आराम से, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है. इसके अलावा क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन देखो आराम से. हाँ, क्वेश्चन में देखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज 10 lakhs मिला. अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज 10 lakhs, दैट मीन्स दैट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. तो ही तो प्रॉफिट लॉस होता है. ओके, तो वो 10 लाख है, तो वो तुमको क्या पूछा है, वो भी तो तुमको टोटल इनकम में ऐड करना पड़ेगा. दैट इज माई सेकेंड हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस. आई मस्ट हैव गॉट ना. थोड़ी ये साइंटिफिक रिसर्च एसिड बेचना मेरा बिजनेस है, नहीं. समझ में आया? एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड? So the first part of the sum is not used for business profession. If it is not used for business profession, तो क्या होगा? ये जो तुम सेल कर रहे हो will be treated as a capital asset and the profit or loss will be treated as income from capital gains. When we do the chapter capital gains, you all will understand it better. Okay? However, I am solving it now so that you all can have it ready for your reference whenever you do capital gains. Ma'am. We are now doing when it is not used for business profession. Same sum not used for business profession. Okay, अब देखो क्या करना है.
If it is not used for business profession, it should strike me it is going to be treated as any other asset. If any other asset is sold, which is not a business asset, you will take sale consideration. मतलब selling price minus cost price, simple. Sale consideration 65 lakhs less cost price. But since the asset is purchased way back in 2008-9, we will have to take into account inflation. इन्फ्लेशन कैसे देखेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू इंडेक्स ईयर ऑफ सेल अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज. क्वेश्चन में तुमको इंडेक्स ईयर ऑफ सेल का दे दिया है, क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 137, नहीं, सेल इज 289. इंडेक्स ईयर ना, योर ईयर ऑफ सेल इज व्हाट 1920 दे दिया है, और ये तुम्हारा इंडेक्स ईयर ऑफ सेल इज 89. ये क्या हो जाएगा? 137. एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा? कॉस्ट प्राइस कितना है तुम्हारा? 30 lakhs. तो ये करो, क्या आ रहा है आंसर बताओ? वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा. यहाँ से लेस करोगे. प्लीज सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म. And the down the लिसन, इफ द आंसर इज कमिंग इन पॉइंट्स, यू आर एनीवे थोड़ा 1-2 रुपया इधर उधर चलेगा, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके अंदर MCQ है. एनी केस मोर देन 0.5 राउंडेड ऑफ. ओके, सो दिस इज योर कैपिटल गेन्स. हाउएवर तुम्हारे पास दूसरा इनकम है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, वो तो है ही तुम्हारे पास. तो अब देखो इसको कैसे करेंगे. तो ये तुम्हारा एक हो गया. नॉर्मल तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन तो है, वो हम देख लेंगे पहले. लेकिन याद है हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में क्या बोला था? अगर कोई एसेट जिसके ऊपर तुमको साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन मिला है, क्योंकि तुम साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हो, अब तुमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं यूज़ किया, तो तुमको जो डिडक्शन मिला है ना, वो हम रिवर्स करेंगे. सो ओके, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 लाख जो तुमने डिडक्शन लिया है, अब वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा. ओके, बिकॉज यू हैव टेकन अ डिडक्शन, नॉट एंटाइटल्ड टू एनी डिडक्शन. ओके, एंड इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. सो दिस इज योर अनदर इनकम विच विल बी एडेड. नाउ दे हैव सेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. यहाँ देखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, वो तो है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बिफोर डेप्री कितना है? 10 lakhs. बिफोर डेप्रीसिएशन इज 10 lakhs. दैट मीन्स आई हैव टू हिट अ डेप्रीसिएशन ऑन माई एसेट्स. ऑफ कोर्स आई हैव टू हिट अ डेप्रीसिएशन ऑन माई एसेट्स. सो डेप्रीसिएशन हिट करेंगे, जो भी आया वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. सो लेट्स सी हाउ टू हिट माई डेप्रीसिएशन. कितना है तुम्हारा रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स? रिटन डाउन वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. 20 lakhs. 20 lakhs. Opening value WDV 20 lakhs. No purchases, acquisitions है ना, है ही नहीं, क्योंकि दे आर सेइंग इट इज़ नॉट यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन. ये केस में इट वाज यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन, हेंस वी टुक वैल्यू 0. यहाँ तो परचेज ही नहीं हुआ है ना एक्विजिशन. परचेज एक्विजिशन सेम थिंग ना, तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है. इज देयर एनी सेल? दिस इज नॉट यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन, तो सेल का तो सवाल ही नहीं है. वो केस में क्या हुआ? बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज किया और फिर बेचा, तो 65 lakhs इज द सेलिंग प्राइस. यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सेल वेल कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्लोजिंग वैल्यू कितना आएगा? 20 लाख. इसके ऊपर डेप्रीसिएशन हिट करो, कितना? एट द रेट ऑफ 15% है ना क्वेश्चन में. डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15%. ओके, करो, कितना आएगा? 3 lakhs. कितना हो गया ये? 17 लाख. Okay, that will be the closing value of your asset. We don't care for that. Okay, we care for the depreciation because I have to hit a depreciation na year. So this depreciation goes up. ये कितना हो गया? Income from business profession becomes 7 lakhs. Okay, this is reversing of your scientific research.
So total add करो. They have asked you the total income from business profession. What is my total income from business profession? देखते हैं. Okay, total income will be short long term capital gains LTCG 171532. फिर ये क्या है? रिवर्सिंग ऑफ योर साइंटिफिक रिसर्च रिवर्स किया मैंने. ओके तो वो 30 lakhs प्लस योर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आफ्टर डेप्रिसिएशन. ओके यहाँ भी हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आफ्टर डेप्रिसिएशन है. यहाँ 10 लाख आया, यहाँ कितना आएगा? 7 लाख. ऐड करके बोलो कितना आएगा. दैट इज योर टोटल इनकम. सो इफ आई कीप माई मनी in the savings account, I am a professional earning income under the head income from business and profession. If I keep my money in the savings account or any fixed deposit account or in any other bank, will I get a deduction? So if I am earning 10 lakhs, 5 लाख का सेविंग अकाउंट में डाल दिया पैसा, कैन आई गेट अ डिडक्शन? यू से नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, 10 लाख पे आपको भरना ही है. हाउएवर there is something called as a tea, coffee and rubber development account which is maintained by national banks. Okay, like SBI के अंदर tea account होता है, rubber account होता है, develop. Okay, there if you can put maximum of 40% of the profits in that account, and as soon as you show that you have put money in that account, okay, you will get a deduction. कितना maximum you can get the amount deposited or 40% of the amount that or 40% of the profits, whichever is lower. Similarly साथ में ही करेंगे, एक साइट रिस्टोरेशन फंड होता है. साइट रिस्टोरेशन फंड मतलब क्या? सपोज let's see the site restoration fund. Suppose there is you're in the business of extraction of petroleum, natural gas, etc. Again, you can keep this money in this site restoration fund. It is an account that is maintained by a government bank and it is recognized as a site restoration fund account. उसके अंदर अगर तुमने 20% ऑफ प्रॉफिट्स तक डाला है तो तुमको डिडक्शन मिलेगा. तुमने अगर 40% भी डाला है तो तुमको कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 20%. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ये अमाउंट जो तुम अंदर डाल रहे हो, वॉट एवर अमाउंट यू आर पुटिंग इनसाइड, you can use it only for the purpose of purchasing any asset or for the development of your tea, coffee and rubber business. Okay, and अगर तुमने वहाँ से पैसा निकाला और कोई और चीज़ के लिए यूज़ किया, in that case whatever deduction we have given you, we will take back that deduction. हम तुमको वो deduction अब तुमको नहीं मिलेगा. तो similar thing that we saw, that deduction that you have received will now not be available. Okay, another thing, let's go further. Let's say you are in the business of growing टी, कॉफ़ी, रबर, इनके फेवरेट है ये 4. वो क्या बोल रहे हैं, अगर तुम टी, कॉफ़ी, रबर ग्रो कर रहे हो तो जो टी तुमको मिलती है या कॉफ़ी तुमको मिलती है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म दैट यू सी. ओके, टी के लीव्स आते हैं. ओके, कॉफ़ी इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए सीड. तुमको यू डोंट गेट इट इन द फॉर्म दैट यू आर कंज्यूमिंग. So there is one activity that is growing, cultivating. Okay, another activity is processing it to make it market ready. This is similarly sugar cane. जो तुम शक्कर खाते हो, शक्कर थोड़ी झाड़ पे उगती है, शक्कर sugar cane से आती है. So there is growing of sugar cane, which is an agricultural activity. But processing it to get sugar is not an agri activity; it is a business activity. However, they have not gone into details of each and every agricultural commodity, only these 4. What they are saying that जो भी तुम्हारा business, जो भी income आ रहा है, so whatever income you are getting, उसमें से let's say the income is 100 rupees, 40 rupees will be considered for the purpose of tea and coffee. 40% is business income, 60% is agri income. So what happens if it is agri income? If it is agri income under section 10(1) of the income tax act, that whole income is exempt. उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है. तो तुमने अगर 100 लाख कमाया है, सिर्फ 40 लाख पे तुमको टैक्स भरना पड़ेगा. दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एग्रीकल्चरल इनकम. इस पर तुम अपने एक्सपेंसेस डाल दो, जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस है, रेंट हुआ, सैलरीज हुआ, ओके, सारे एक्सपेंसेस यहाँ डाल दो, जो भी हुआ दैट विल बी टैक्सेबल, बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर रेवेन्यू. सिमिलरली फॉर कॉफ़ी बीन्स,
25% is only agri income, rest everything, अरे 25% is business income, rest everything is agricultural income. रबर के लिए इतना है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. ओके, फॉर अदर टाइप्स ऑफ, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, तब क्या करना है, तब हम देखेंगे सेक्शन 10(1) में डिटेल में देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू अदर डिडक्शंस. वेरी नाइस. Other deductions are basically everything related to business. Now we can go and study each one, but in short, remember, anything related to business is allowed as a deduction. Not business, not allowed for deduction. Okay, simple. Now I'll give you examples. Take insurance of stock. Stock insurance allowed as deduction, हाँ business है. Insurance of factory allowed as deduction, yes. Insurance of employees allowed, workmen allowed. What about insurance of self? खुद I am the owner of the business, proprietor, और मैंने, और I am the partner and I have taken my life insurance. Is it allowed? No. Okay, self insurance is not allowed. बट तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए यूज़ किया तो अलाउड है. ओके, नेक्स्ट वन. तुमने अपना एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सब भरा है, बिजनेस के लिए भरा है ना, अलाउड एज ए डिडक्शन. बट इनकम टैक्स तो प्रॉफिट पे कंप्यूट करते हो. प्रॉफिट कैसे मिलता है? प्रॉफिट यू टेक आफ्टर टेकिंग ऑल द डिडक्शंस, यू गेट द प्रॉफिट. प्रॉफिट के ऊपर टैक्स मारोगे. सो राइट नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. कैन आई से दैट टैक्स इज गोइंग टू बी हिट बिफोर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन? तो देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये तुम्हारा 100 रुपीज़ का इनकम हो गया, इसके ऊपर टैक्स मारोगे ना, लेट्स से 30% टैक्स है, तो ये तुम्हारा टैक्स होगा. करेक्ट. 70 क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. Agreed. Now what I'm saying that ये है ना, तुम 30 पहले ही टैक्स मार दो, ये टैक्स मार के जो भी आया वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ओनली. आई कांट हिट द टैक्स फर्स्ट बिफोर इवन गेटिंग माई प्रॉफिट्स. सो इनकम टैक्स इज नॉट अ डिडक्शन दैट यू कैन कंप्यूट. इनकम टैक्स तो प्रॉफिट पे होता है ना, प्रॉफिट हम ढूंढ रहे हैं, तो ये नहीं होगा. ओके, एनी दे आर सेइंग एनी एक्सपेंसेस दैट यू डू, यू कैन गेट अ डिडक्शन ऑन इट प्रोवाइडेड दोज आर रिकॉर्डेड एंड इट इज़ थ्रू अकाउंट पेई चेक्स. बेसिकली तुम्हारे डिजिटल मैकेनिज्म होनी चाहिए, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए. कैश एक्सपेंस इज नॉट अलाउड. ओके, बट दे आर सेइंग, बट अभी चाय वाले को थोड़ी बिल दोगे, खर्चा ही है ना तुम्हारा. जीरोक्स वाले को थोड़ी तुम चेक लिख के दोगे. So they say, हाँ ठीक है, up to 10,000 per day you can take cash. Okay, for everything else you will have to show an account pay check. इससे ज़्यादा का कैश एक्सपेंडिचर किया तो डिसअलाउ हो जाएगा. तुमने 25,000 दे दिया दिन का, ओके, फॉर सम एक्सपेंस, दे आर सेइंग वी डोंट रिकॉर्ड इट, वी वर नॉट गोइंग टू गिव यू अ डिडक्शन. ओके, सो तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी दिया है क्या है अलाउड, डिसअलाउड. इज वेरी लॉजिकल. ओके, now another set of allowable expenses we are seeing here is special losses like theft, non-recovery of an advance, robbery. they are saying ये सब भी है ना, हम तुमको डिडक्शन दे देंगे. रॉबरी जेन्यून केसेस होना चाहिए, तुमने केस फाइल किया है एक्सेट्रा. सो थेफ्ट है, रॉबरी है, नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस, दीज आर स्पेशल लॉसेस विच विल बी अलाउड एज एन expense. You can show as an expense. Let's go forward. This is important. There are some disallowed expenses. Disallowed expenses are जहाँ तुम्हारे payments made to a non-resident. Now let's say I have availing services from a NR. Okay, वो मुझे technical help दे रहा है. He is going to provide me some help. Now if I am paying him that remuneration, it is my duty to deduct the TDS. TDS is tax deducted at source. I am the source of income for him. I will have to deduct the TDS. If I do not deduct the TDS, tax कट के ही मिलता है पैसा. If I do not deduct the TDS, they are saying पूरा का पूरा 100%
will be not allowed as an expense. No expense allowed. 100% disallow हो जाएगा. तो मैंने अगर 1 लाख रुपया दिया है, मेरे पास प्रूफ है, बैंक अकाउंट से मैंने उसको पैसा दिया है ट्रांसफर, ओके, इनवॉइस जनरेट हुआ है, 100% इज डिसअलाउड. हाउएवर, ओके, व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट डिडक्टेड दैट 10% TDS. हाउएवर, अगर ये रेसिडेंट होता, so let's say I'm paying you some money for some advice that you have provided me, some professional services that you have provided me as a CS. I paid you 1 lakh during the year. 1 lakh पे मुझे तुम्हारा 10% TDS डिडक्ट करना है. मैंने नहीं डिडक्ट किया because you are a resident. I will not get a deduction of 30% of the amount. 30% मतलब मुझे 70,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी का 30,000 will be disallowed. Okay, it will be disallowed. Why? Because I have not deducted the TDS on the amount that I have paid you. If it is a resident, 30% disallowed. If it is a non-resident, full 100% disallowed. पूरा expense disallowed है. Okay, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये क्या है आज देखेंगे. रेम्यूनरेशन, अगर तुम, इफ यू आर अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, लेट्स से Zubair and I, we made a profit of 100 lakhs. If we made a profit of 100 lakhs after taking into account all expenses, rent, वेंट, सैलरी सब दे दिया हमने, ओके, इसके बाद हमको 100 lakhs आया. अब 100 lakhs में Zubair and I will also take some money as our salary because we are working. When we do that, ओके, हम लोग क्या करेंगे, आई टेल Zubair 100 का प्रॉफिट आ रहा है, 50-50 ले लेते, 50 lakhs तेरा, 50 lakhs मेरा. तो अब इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कितना दिखेगा आफ्टर पेइंग आवर सैलरी? 0. दे आर सेइंग दैट दिस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर हैज टू बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 40B. इफ तुमने ऐसे ही अपने मन से जो भी अमाउंट ले लिया है वो डिसअलाउ होगा, उसको ऐड बैक करो इनकम में एंड कैलकुलेटेड वंस अगेन एज पर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अंडर सेक्शन 40B. ओके, वापस ये देखेंगे. कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, एज एन एम्प्लॉयर, एज अ बिजनेस पर्सन, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द PF ऑफ माई एम्प्लॉयज मैक्सिमम. मैंने उसको 20% दे दिया, ओके, तो 12% से ज़्यादा अगर मैं जो उसको दे रही हूँ वो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं मुझे. इट इज़ नॉट शोन एज एन एक्सपेंस. तो इफ आई इंस्टेड ऑफ पेइंग 12,000 आई पे 20,000, 8,000 का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ 12,000 मिलेगा. ओके, बिकॉज देर इज़ अ लिमिट, 12% ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा देना है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. नाउ एनी कैश एक्सपेंस अबाउट 10,000 rupees विल बी डिसअलाउड. ओके, इफ़ यू आर इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो ये 35,000 तक जा सकता है. पेट्रोल डीजल का रोज़ का खर्चा होता है, तो जैसे ठीक है वो 35,000 तक जा सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. Section 40B, book profit. So let's take a scenario when there is a loss situation in a partnership firm. Okay, this is taxation of firm. If there is a loss situation in the firm, will the partners तो मेहनत कर रहे हैं ना, सैलरी तो उनको मिलना चाहिए. अगर लॉस है तो क्या? अगर लॉस है, सो दे आर सेइंग y'all can get remuneration and this is to all partners. Remuneration to all partners can be max to max 1,50,000 per annum only. बस इतना प्रॉफिट, इतना सैलरी दे सकते हो. उससे ज़्यादा दोगे तो हम तुमको डिडक्शन उसका नहीं देंगे. 1.5 लाख अगर प्रॉफिट हो रहा है, सो दे आर सेइंग ये छोटा प्रॉफिट है अप टू 3 lakhs. ओके, देन दे कैन टेक 1,50,000 ओके रेम्यूनरेशन और 90% ऑफ द प्रॉफिट्स विच एवर इज मोर. कितना रेम्यूनरेशन ले सकते हो? रेम्यूनरेशन यू कैन टेक इज 1,50,000 और 90%. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, तो 90% कितना हुआ? 90,000. तो हाउ मच विल द पार्टनर्स टेक? 1,50,000. विच एवर इज हायर दे कैन टेक अप टू 1,50,000.
if the profit is 2 lakhs, so how much will the partners take? 90% is 1,80,000, so they can take up to 1,80,000. okay, समझ में आया? now let's say up to 3 lakhs, above 3 lakhs जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर you can take 60% of the 60% of the balance. okay, now another thing, ये maximum amount है as per this. however, there is a very big however. if remuneration as per agreement is less, okay, is less, अग्रीमेंट में बोल रहा है से तुमको 50,000 रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो ये तुम्हारे को जितना भी कैलकुलेशन ज़्यादा हो भी रहा है इज लेस दैन 40B कैलकुलेशन, देन इट विल बी व्हाट, दिल से हाँ ठीक है, देन इट विल बी रेम्यूनरेशन एज पर अग्रीमेंट. ओके, लेट्स से रेम्यूनरेशन इज मोर, remuneration in agreement is more than 40B calculation, then क्या होगा? remuneration will be will be as per 40B. तुम्हारे अग्रीमेंट में लिखा है 5-5 लाख ले जाओ, अरे बट लॉ तुमको मैक्सिमम कितना बोलता है? 1,50,000, तो उतना ही ले जाओ. लॉस हुआ तो भी 5 लाख थोड़ी मिलेगा, कितना मिलेगा? 1,50,000. तो ये हो गया रेम्यूनरेशन. इसके अलावा मैम, हाँ, where is this in the Vanguard? This 40B and all of it is not there. Only 40A is the only thing that's there. it is there in your module. एक मिनट, let me just finish it. इसके अलावा there is interest on capital. पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द मैक्सिमम इंटरेस्ट एज पर लॉ इज 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, इन द अग्रीमेंट, लेट्स से अग्रीमेंट सेज वे मोर. ओके, अग्रीमेंट सेज agreement percentage is, let's say if agreement percentage is less, then in that case you will take agreement percentage. okay, अगर agreement percentage is less then you will take the agreement percentage. agreement बोलता है मैक्सिमम तुमको कितना दे सकते हैं? 12%. तुमने अगर दिया है 10% तो तुमको 10% ही मिलेगा. okay, that is not an issue. now let's see, relation to partner cannot be any amount, it has to be determined as per section 40B. 40B क्या बोलता है? जो भी प्रॉफिट तुमको दिया है वो प्रॉफिट देखो अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है कि नहीं. अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो the first 3 lakhs, so if it is 10 lakh rupees, first 3 lakhs you will get maximum 90% of the profit. You will get maximum 90% of the profit, and the remaining you will get how much? Remaining above 3 lakhs. तो 10 लाख का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो 3 लाख पे कितना मिलेगा? 90%. जो रिमेनिंग 7 लाख है उस पर कितना मिल जाएगा? 60%. तो जो तुम्हारा 10 लाख प्रॉफिट है उस पर तुम कैलकुलेट करोगे वो कितना रेम्यूनरेशन ले जा सकता है. अगर उसने उससे ज़्यादा का रेम्यूनरेशन लिया है, सो लेट्स से एग्जाम्पल वी आर टेकिंग book profit is 10 lakhs. If book profit is 10 lakhs, in that case for the first up to 3 lakhs कितना होगा? book profits का up to 3 lakhs will be 90%, that is 2,70,000. remaining okay is 7 lakhs. 7 lakhs का क्या लेना है? 60%, तो वो कितना हो जाएगा? 4,20,000. दोनों को ऐड करो, कितना रेम्यूनरेशन होगा? 6.9 lakhs is the maximum remuneration that the partners can take. Now let's say उनको रेम्यूनरेशन मिला है 8 लाख रुपया.
अगर रेम्यूनरेशन 8 लाख मिला है तो एक्सेस कितना मिल गया है उनको? 1. डिसअलाउड मतलब तुमने अगर एक्सपेंस लिखा है तो अब ये इनकम हो जाएगा और तुमको ऐड करना पड़ेगा इन योर प्रॉफिट्स. यू विल हैव टू ऐड इट इन योर प्रॉफिट्स. ओके, गॉट इट? Okay, this is your section. We are now doing section 36 के अंदर ही various other expenditures which are allowed as deductions. Now let's come to bad debts. Bad debts हर business में होता है. If there is a bad debt, they are saying that you are allowed to take as a deduction, bindas, but it should be an actual bad debt. It should be an actual bad debt. Now what is the meaning of actual bad debt? That means you should have shown it as an income at one point of time. That तुम्हारे लिए वो income outstanding है और it is a money that was supposed to come. And now you are writing it off as a bad debt. So understand this. It should be recorded previously as an income, outstanding income. Should be recorded previously as an income. As an outstanding income, obviously, then only you can take it as a bad debt, that it has become irrevocable, irreceivable. Okay, ये मिलने वाला है नहीं, इसीलिए I will record it as a bad debt as of date. आराम से ये ले सकते हो. Okay, provision for bad debt. Provision for bad debt is not a real bad debt. It is actually a provision that I am making that हो सकता है that there is a bad debt that will happen. I am making a provision or we call it RDD. Now ये provision कहाँ से बनता है? तुम्हारे profit से ही तुम निकालोगे, ये account में पैसा डालोगे. Okay, as a provision for bad debt. They are saying this provision is not allowed. Any provisions that you make which are not real in nature, but I know this person is not going to give me the money, so record it as a bad debt. You cannot record it as a provision for bad debt. Like, understand, I can take repairs as an actual expense और मैं उसको I can show it as an expense, but provision for repairs is not allowed as a deduction. Okay, हम क्या करें? Expenses record करें. Provision is not an expense. However, provision for bad debt is not allowed. Can I say it is not allowed as an expense? Just a provision हो सकता है, future liability. However, it is allowed for banks, financial institutions, NBFCs. Okay, because उनका तो काम ही है ना lending, borrowing, etc. So they have said if it is allowed for banks and financial institutions, and let's see how much. चलो तीनों केसेस में देखते हैं. इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर, in case of cooperative banks it will be 8.5% of gross total income GTI plus 10% rural advance. Okay, in case of foreign banks and other पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, बाकी सब इधर फिट हो जाएगा कॉरपोरेटिव बैंक्स के अलावा. उनके लिए उनने दिया है 5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. देयर इज़ नो 10% रूरल एडवांस, उसके लिए है ही नहीं. इन केस ऑफ NBFC इज ऑल्सो 5% GTI. इतना तुमको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए मिल सकता है अगर तुम बैंक हो तो. ओके, ये एक बार देख लो आराम से. नाउ दिस इज व्हाट provision for bad debts. इसके अलावा they are saying that you make another reserve. This is what a provision that you have made, which normally everyone makes an RDD. इसके अलावा for banks, okay, there is something called as a reserve. We call it special reserve. It's special reserve
special reserve for banks and financial institution. This is over and above your provision for bad debts. Okay. Now see here, special reserve for banks and financial institutions. They are saying this is a special reserve that is created. You can transfer the money in this special reserve. कितना अमाउंट का तुमको डिडक्शन मिल सकता है? 20% ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रोवाइडेड यू हैव एक्चुअली ट्रांसफर द अमाउंट इन दिस स्पेशल रिजर्व. कितना अमाउंट एक्चुअली ट्रांसफर्ड वो तो है, अगर 1 रुपया डाला है तो 1 रुपये का डिडक्शन मिलेगा, बट अगर तुमने 1 करोड़ डाला है तो सी व्हाट इज द प्रॉफिट्स, 20% ऑफ द प्रॉफिट्स. और पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, बट फ्री रिजर्व्स में हम लोग ने क्या बोला है? सिर्फ जीआर. सो यू विल टेक ट्वाइस ऑफ द कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. Okay, twice of your paid up capital and free reserves, and subtract that. So 2 times of your paid up capital and free reserves, and subtract this entire thing from the opening balance. So let's say if my paid up opening balance of this special reserve, so let's say opening balance of the special reserve was 100. Okay, example, and my paid up capital is 100. GR का क्लोजिंग हैज़ बीन 20, तो इसका 120 हो गया. 120 इंटू 240 माइनस 100, तो तुम्हारा ये अमाउंट कितना हो गया? 120. देखो मैंने क्या किया, ये 100 इसका ट्वाइस ले लोगे, 2 इंटू पेड अप कैपिटल एंड दिस क्लोजिंग GR, उसका डबल अमाउंट माइनस दिस ओपनिंग स्पेशल रिजर्व. ईजी. ये अमाउंट तुमको क्या करना है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग यू विल हैव टू allow as a deduction. Okay, now this is done. इसके अलावा let's see if there is any. चलो, let's take a situation where instead of rubber, coffee and tea, I'm cultivating any other product. So जिसके अंदर example लेते हैं sugar cane. For all purposes, let's take sugar cane. So assume that sugar cane grow हो रहा है, और sugar cane से हम क्या कर रहे हैं? शुगर बना रहे हैं. तो दे आर सेइंग ये जो है ना, तुम शुगर केन का जो कर रहे हो वो ठीक है, दैट इज एग्री इनकम. बाकी जो कर रहे हो, शुगर बेच रहे हो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई एम कल्टिवेटिंग शुगर, हाउ डू दे, एट व्हाट पॉइंट विल दे टैक्स यू? सो दे आर सेइंग दैट एज सून एज यू सेल द शुगर इन द मार्केट, वी विल टैक्स यू. Okay, but that whole amount, let's say I am selling the sugar for 100 rupees. Okay, they are saying that this 100 rupees cannot be entire income from business profession, because cannot be entirely business profession. This income is agri income. Fair? Now how do we determine that? They are saying, let's say ये agri income का value क्या है? तो अगर तुम शुगर केन कल्टिवेट कर रहे हो, दे आर सेइंग मार्केट वैल्यू ऑफ एग्री प्रोडक्ट यूज्ड एज रॉ मटेरियल. सो अगर शुगर केन ग्रो कर रहे हो तो तुमने सीड्स डाले होंगे, कोई सैपलिंग्स डाले होंगे, वो अमाउंट. ओके, प्लस एनी सेल प्रोसीड्स इफ सोल्ड. सॉरी, हियर इट विल बी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, दैट विल बी द सीड्स. एंड मार्केट वैल्यू विच इज़ यूज एज रॉ मटीरियल फॉर द नेक्स्ट कोर्स. सो अगर ये शुगर को मैंने यूज़ नहीं किया इन माई बिजनेस, like instead of growing sugar, instead of cultivating sugar, instead of going ahead and processing sugar, I go and sell it in the market. So this sugar cane is actually a raw material for my sugar. It is nothing but as a raw material for the used as raw material. Used as raw material is मतलब मैंने I have not sold it. I am using it as a raw material to produce sugar. Okay, and हो सकता है let's say अगर 10 units of sugar cane है, मैंने दो यूनिट बेच दिए मार्केट में, and 8 units I have used it as a raw material to produce sugar. तो जो तुमने यूज़ किया है raw material to produce sugar, उसका वैल्यू क्या है? What is the market value? Versus also add if it is sold in the market, what is the sale proceeds you received from it? Okay, minus cost of cultivation. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लेट्स से इफ आई एम ग्रोइंग शुगर केन, बस शुगर केन तक ही,
तो तुम्हारा मार्केट वैल्यू क्या है वो शुगर केन का. प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ सेलिंग प्राइस इज इफ इट इज सोल्ड माइनस कॉस्ट प्राइस. बट व्हाट इफ आई हैव नॉट सोल्ड एवरीथिंग? सम अमाउंट आई हैव नॉट सोल्ड, आई हैव यूज्ड इट एज अ रॉ मटेरियल, तो उसका मार्केट वैल्यू डालो. ओके. व्हाट अबाउट द बिजनेस इनकम? बिजनेस इनकम इज इजी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इन्वॉल्व. ओके. बट इसके अलावा यू विल ऑल्सो टेक सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसिस फॉर प्रोसेसिंग, बट यू विल ऑल्सो टेक द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट भी तो डालोगे, प्रोसेसिंग कॉस्ट तो लोगे बट रॉ मटेरियल कॉस्ट भी लोगे. तो जो तुमने शुगर केन डाला वो रॉ मटेरियल हो गया प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग. जस्ट दैट हाउ डू यू फाइंड सेलिंग प्राइस फॉर एन एग्री प्रोडक्ट? ओके. अगर एग्रीकल्चरल इनकम ढूंढना है तो शुगर केन ग्रो हो गया, उसका मार्केट वैल्यू क्या है? ओके. अगर तुमने उसको बेचा नहीं है, अगर बेचा है तो सेलिंग प्राइस डाल दो, सिंपल, माइनस कॉस्ट. अगर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ईजी है, शुगर केन का अब तुम्हारा शुगर बन गया तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट दैट इज योर शुगर. ओके. सेलिंग प्राइस हो गया वो, सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर माइनस ऑल द खर्चा, तो रॉ मटेरियल का खर्चा और प्रोसेसिंग का खर्चा. इजी.